So, thank you, Rohit, for being so detailed and comprehensive at the same time. We also request all of you all to make sure that we articulate this as well as possible, and through your medium of your paper and your news channels, we request you to tell the people in power and the government to make sure that they give this serious attention so that this achieves finality. Ironing these small issues out can have an insane impact in terms of the pace of development that will happen in Bombay, because a lot of projects today are stuck merely because of viability. So just to give you few numbers so that you'll understand, since we're all in Bombay, I'll probably give you numbers for Bombay first. For approval, to get approvals from the concerned authorities, in Bombay we pay 55,200 rupees per square meter. 55,200 rupees per square meter to the concerned authorities to get approval for a building. Same amount in Chennai is 5,000 per square meter. The same amount in Delhi is 5,500 per square meter. The same amount in Pune, which is in our same state, is 1,800 rupees per square meter. So now look at 55,200 and 1,800 in the same state. So we already have a high cost of development. Ironing out other regulatory issues which are adding to double taxation and adding to extra cost will help take off more projects, which will make sure there's more revenue for the government, which will make sure that housing can become affordable, and which can make sure that people who are living in older, dilapidated buildings get new homes. So this has a larger social message and social impact. And through your mediums, if we can make sure that everybody gets to know that these are issues that are low-hanging fruits. We're all talking about, and we're all living in uncertain times with whatever is happening globally in terms of economy. These are low-hanging fruits that we can fix internally. So through your medium, if we can reach the right ears, I think we'll all do great justice to development. Just to add further what Mr. Bijali has just said, that clearly the city which needs the most redevelopment is Mumbai, and also has suffered with the redevelopment costs. Equally, the triple effect of GST is making this redevelopment absolutely unviable in our city like Mumbai, which deserves and requires most of the redevelopment at this point in time. Yes, I was just going to supplement what has been spoken by Rohit and Sunny. And that if for a moment we were to assume that there wasn't a space constraint in Mumbai, right, the transaction even from a GST perspective would have been looked at as simple as being a promoter just buying land, on which there's absolutely no doubt that there's no GST, construction of units and sale to the new buyers, on which there is a GST. So the extra cost, the triple effect that we're speaking about, is essentially coming in case of redevelopment projects, but in a city like Mumbai, unfortunately, that's the only way out. So I have just one question. Yes, please. Yes, now please. Or you want to No, I think this is what we wanted to make it clear, that Bombay High Court Nagpur bench ruling is still not definitive ruling, who has comprehensively decided that no GST payable on the development rights. GST is still payable. GST is still payable on the area which is handed over by the developer to the members, and matter is still sub judice before the Bombay High Courts and other high courts, and also been pending before the GST Council. I think this is what we wanted to bring to all of your notice, so that you appropriately cover in your coverage that you are looking at. So basically, जो टॉपिक हम आज यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो है एक बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर बेंच का एक रिसेंट जजमेंट जो श्रीनिवासा रियलकॉन का है, जो डेवलपमेंट राइट से रिलेटेड है, जिसमें लैंड ओनर या सोसाइटी एक डेवलपर को डेवलपमेंट राइट देती है। मुद्दा ये है कि
जो जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी है वो रिवर्स चार्ज पर है या फॉरवर्ड चार्ज पर है। रिवर्स चार्ज का मतलब ये है कि जब डेवलपर वो खुद एज अ रेसिपिएंट ऑफ द सर्विस डेवलपर वो जीएसटी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करता है, उसको रिवर्स चार्ज कहते हैं। और फॉरवर्ड चार्ज है कि जो सर्विस दे रहा है वो ये लाइबिलिटी डिस्चार्ज करता है। तो ये पूरा जो मुद्दा है इस बेसिस पे निर्भर है कि जो लाइबिलिटी है वो रिसिपिएंट की है या गिवर की है। और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट मिस्टर रोहित जैन और हर्ष हैं ELP से, तो वो आपको इस पर थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे। ये देखिए, जीएसटी इम्प्लीकेशंस एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। जब से जीएसटी आया है 2017 से, जीएसटी ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे ट्रिपल इफेक्ट इज़ व्हाट इज़ वी कॉल इट, जहाँ लग रहा है। एक तो सोसाइटी जब डेवलपमेंट राइट्स डेवलपर को देती है उस पर जीएसटी लग रहा है। जब सोसाइटी मेंबर्स को डेवलपर एरिया देता है उस पर जीएसटी लग रहा है। और जो डेवलपर पूरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो पूरा सीमेंट, स्टील और लेबर एम्प्लॉय करता है, डिप्लॉय करता है, उस पर भी जीएसटी लग रहा है। इसलिए ट्रिपल इफेक्ट हो गया है जीएसटी का। पूरी डेवलपर, पूरी रियल इस्टेट कम्युनिटी, MCHI, क्रेडा, ये जो मुद्दा है ये जीएसटी काउंसिल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जीएसटी काउंसिल ने ऑलरेडी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म किए हैं। ये मुद्दा उनके सामने ऑलरेडी रखा गया है, वो एग्जामिन कर रहे हैं। बट मीनवाइल ये असेसमेंट जीएसटी की चालू हो गई है, बिकॉज जीएसटी आके आज 7 से 8 साल हुए हैं और जीएसटी के असेसमेंट चालू हुई है। जीएसटी अथॉरिटीज़ जब असेसमेंट कर रहे हैं तो उसमें शो कॉज नोटिस इशू कर रहे हैं, डिमांड इशू कर रहे हैं। एंड बिल्डर, डेवलपर और द सोसाइटी मेंबर्स आर वेरी कंफ्यूज्ड कि इसमें जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर अभी भी डिसाइड नहीं किया है फाइनली। इसके लिए कोई डेवलपर ने ये मुद्दा हाई कोर्ट में लेके गए, एक रिट पिटीशन फाइल किया था। ये रिट पिटीशन बहुत सारी हाई कोर्ट बेंचेस में अभी भी पेंडिंग है, ये अभी भी डिसाइड हुआ नहीं है। एक रिट पिटीशन एक श्रीनिवासा रियलकॉन के केस में नागपुर बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने आया। उन्होंने जब मुद्दा डिसाइड किया, उन्होंने एक ही मुद्दे पे डिसीजन दिया है कि इस पे रिवर्स चार्ज पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, और उन्होंने डिसीजन दिया कि रिवर्स चार्ज पे नहीं लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी तो लगेगा ही। आज जो लॉ है इसके हिसाब से डेवलपमेंट राइट्स पे भी जीएसटी लगेगा, और जो एरिया मेंबर्स को दिया जा रहा है उस पे भी 5% जीएसटी लगेगा। ये जो मुद्दा है, ये जो मसला है, एक तो बाकी हाई कोर्ट बेंचेस जब डिसाइड करेगी या जीएसटी काउंसिल उस पर कुछ अपना निर्णय देगी तो ही ये क्लियर होगा। तब तक जीएसटी लॉ के तहत इस पे जीएसटी लगता है और जीएसटी भरना पड़ेगा, जब तक ये आगे की क्लैरिटी नहीं आती है। सर, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे सर ने कहा कि जीएसटी भरना पड़ेगा, तो एक डेवलपर के ऊपर भी एक प्रेशर आता है उस चीज़ का, तो व्हाट डू यू थिंक, वो जीएसटी क्या सोसाइटी मेंबर्स को पे करना चाहिए या फिर डेवलपर्स को ही करना चाहिए? कोई भी टैक्स लॉ में दो कंसेप्ट्स रहते हैं। एक कंसेप्ट होता है कि गवर्नमेंट को भरने की जिम्मेदारी किसकी है। ये जो ट्रांजैक्शन हमें डिस्कस कर रहे हैं उसमें गवर्नमेंट को टैक्स भरने की जिम्मेदारी डेवलपर पे आती है, आइदर अंडर रिवर्स चार्ज या जब यूनिट्स एग्जिस्टिंग मेंबर्स को हैंड ओवर करते हैं उस पे अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। बट जीएसटी एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, जिसका मतलब ये होता है कि इवेंचुअली ये टैक्स का बर्डन जो फाइनल कंज्यूमर है उस पर पास ऑन होते रहता है वन लेवल टू अनदर। अगर हम उस लॉजिक को एक्सटेंड करेंगे तो ये जो सोसाइटी मेंबर्स को अल्टीमेटली जा रहा है, आज का कानून ये कहता है कि जो एग्जिस्टिंग सोसाइटी मेंबर को भी यूनिट मिलता है उस यूनिट पे भी मार्केट वैल्यू के दाम पे टैक्स भरना है, ना कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे। उस लॉजिक के बेसिस पे जाएंगे एंड कंजम्पशन टैक्स, जीएसटी बीइंग एंड कंजम्पशन टैक्स, तो ये कॉस्ट टेक्निकली सोसाइटी मेंबर्स ने बेयर करना आना चाहिए। बट हम
ये पूरा मुद्दा समझते हैं कि इसमें सेंसिटिविटीज़ है, बॉम्बे जैसी प्लेस में इसका रेट्स काफ़ी हाई है, इसी के चलते हुए जीएसटी काउंसिल से क्रेडाई, MCHI थ्रू अस एंड अ लॉट ऑफ अदर पार्टनर्स हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मुद्दे का हल निकाला जाए।